Hello students, good morning. How are you? Okay, so today we are going to start again our last lecture where we left, and today we are continuing the lecture from my last day. So as explained to you in my last three videos, till the question number your 10. So till 10th question I explained you in my last three videos, and if you don't see, please you can see in my channel, there are all the videos are present. Now I'm going to solve the next question number 10. So question number 11, 10 तक हम solve कर चुके हैं. Now we are going to solve question number 11. So question number 11, that is what? As it is mentioned in your book, that a TV tower stands vertically on a bank of a canal. So you have given a TV tower that is on the bank of the canal. So the TV tower is, so this is TV tower and it is on the bank of canal. Means अगर मैं इस part को canal कहता हूँ, ठीक है, if I am taking this as canal, तो this on the one side of the canal there is a TV tower, and the next is written from a point on the other bank. ये other bank किसका है? तो other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Means from this the angle of elevation is 60 degree. Okay, so you have given that angle of elevation is 60 degree. Next, from another point, एक अब अलग अलग पॉइंट आप ले लें, और वो पॉइंट है कहाँ पे? From another point 20 meter away from this point. मतलब इस पॉइंट से आपने 20 मीटर अवे, इस पीछे में जाएंगे आप, it is 20 meter, ठीक है, and from this point the angle is 30 degree, angle of elevation is 30 degree. So from this angle of elevation, this is your 30 degree, ठीक है, आपको 30 degree given है. The question is find the height of the tower and the width of the canal. मीन्स आपने एक तो टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, एंड द अदर इज विड्थ ऑफ दिस कैनाल, ठीक है, एक आपने कैनाल की विड्थ फाइंड आउट करनी है. सो देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. So first of all, as I always told you, mention your right angle triangle, write given your name to the figure, and also write the things which is you get informed from the triangle. So it is A point, it is B point, it is C, and this is D. This is your right angle triangle. So now in this one we will again use only two triangles, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, and those are right angle triangle. So first in triangle, तो जो पहला ट्रायंगल हमें यूज करना है, उससे पहले आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए. दैट हाइट ऑफ द टावर, दैट इज h, एंड योर BC यानी कि विड्थ ऑफ कैनाल, दैट इज x, और आपको एंगल्स गिवन है, एंगल ACB that is 60 degree and angle ADB that is 30 degree, ठीक है. तो ये सारा गिवन है, और यस वन थिंग लेफ्ट दैट इज CD. आपको CD भी गिवन है, डिस्टेंस CD is also given, so you will write that also. So the CD is 20 meter. Now we are going to solve the sum, and for that one we will use the right angle triangle. So in triangle ABC, you have given triangle ABC. So in this triangle ABC, which are right angle triangle, I can write here tan theta, and your theta is 60, is equal to perpendicular, that is AB upon base यानी कि BC.
Now you can put the values 10, 60 is root 3 and value of AB. जो value of AB आपकी है, that value of AB is h and the value of BC is x. So now you can do the cross multiply. So h is equal to x root 3. So I name it as equation number 1. मैंने इसको equation number 1 दे दी. Now after this one, next which we are using here, that is triangle. Next right angle triangle is ABD. तो मैंने next right angle triangle लेना है, that is ABD. So in this ABD triangle I can write here 10 30 is equal to AB upon BD. ठीक है, AB upon BD perpendicular upon the same thing. So 10 30 is 1 by root 3. Value of AB is h and value of BD is x plus 20. Yes, it become x plus 20. Now again to the cross multiply. So x plus 20 is equal to h root 3 and then x is equal to h root 3 minus 20. जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि आप किसी भी एक इक्वेशन में से इधर फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दैट वी पुट इन द सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो मैंने आपने देखा कि मैंने इस x की वैल्यू को फ्रॉम किससे फाइंड किया है, यस सेकेंड इक्वेशन से फाइंड किया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट. सो पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट. तो सेकेंड इक्वेशन जो आपने फाइंड आउट की है दैट आई एम गोइंग टू पुट इन द फर्स्ट. सो h इज इक्वल टू x. ये आपके पास पूरी x की वैल्यू है, दैट इज h अंडर रूट 3 माइनस 20 एंड होल दिस मल्टीप्लाई विद रूट 3. सो h इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस इनसाइड द ब्रैकेट, तो इट बिकम योर 3h. ठीक है, h इज इक्वल टू 3h माइनस 20 रूट 3. नाउ जैसा कि हम हमेशा करते हैं इक्वेशंस में, दैट टेकिंग h ऑन वन साइड ऑन अदर थिंग ऑन अदर साइड. सो h माइनस 3h इज इक्वल टू माइनस 20 रूट 3. h माइनस 3h इट बिकम माइनस 2h एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 20 रूट 3. Minus and minus cancel, then h is equal to 20 root 3 upon 2. So the value of h is 10 root 3 meter. So you can see that the height of the TV tower is 10 root 3. And now the other thing उसने आपसे एक और चीज पूछी थी, that is width of the canal. विड्थ ऑफ द कैनाल हमने x माना है, इट मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x आल्सो. अगर वो विड्थ ना पूछता, x नहीं पूछता, देन नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, सो वी कैन पुट दिस h इन अवर फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट में पुट करना ज़्यादा इजी होगा. आप सेकंड में भी कर सकते हैं, बट सेकंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. बट फर्स्ट आई हैव द इक्वेशन. इफ यू सी द फर्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फर्स्ट आपके पास सिर्फ ये है, that is h is equal to x root 3 and here you can easily put the value of h. आप h put करेंगे and you can find the x. So h is your 10 root 3 is equal to x root 3. So x is equal to 10 root 3 upon root 3. So root 3 cancel. The value of x is 10 meter. Means the canal on the bank of which there is a cable tower, that canal has width 10 meter. Okay students, now we are going to start our next question number 12. So now question number your 12th. Okay, again the same thing, we will read the statement carefully first and then we will solve it.
बिकॉज अगर आपने मेरा डायग्राम सही बना लिया तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट आपके पास 7 मीटर। सो आई एम ड्राइंग हियर अ बिल्डिंग दैट इज 7 मीटर हाई। From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower means building के सामने हमारे पास एक टावर खड़ा है। इस टावर का टॉप से जो एंगल है that angle is 60 डिग्री, ठीक है, is 60 degree, and the angle of depression to its foot means from here the foot angle is 45, ठीक है। तो अगर ये 45 है then you know very well this will also be a 45, ये depression angle बन रहा है, and that's why the outer interior angles apply करके you can find the value of this angle also. No, डिटरमाइन आपने इसमें क्या करना है, द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमने इस टावर की हाइट पता करनी है। सो यू नो दैट इफ दिस इज 7 दिस विल आल्सो 7, ठीक है, ये आपका 7 होगा और आप इस दूरी को h मान सकते हैं, ठीक है। ये मुझे गिवन नहीं है, सो आई नेम इट एज x, ठीक है। अब आप इसका नाम रख दो, दिस इज a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट, d पॉइंट, e पॉइंट। Here is right angle triangle and one other is a right angle, ठीक है। So this is your diagram which we are going to solve now, ठीक है। So in this one first you will write that what you knows and that and what is given, all those things you will write in your information. So first is height of बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट आपके पास 7 मीटर, ठीक है। जो बिल्डिंग की हाइट है वो 7 मीटर है। तो और हमें इससे क्या पता लग गया, देखो, सो इफ ED इज इक्वल टू BC और 7 मीटर, ठीक है। इन द सेम वे DC एंड EB आर आल्सो इक्वल, DC इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू x, जो हमने x माना है, एंड द एंगल्स h भी आपने माना है, एंड लेट AB दैट इज इक्वल टू h, एंड एंगल्स आर एंगल AEB इज इक्वल टू 60 एंड एंगल ECD इज इक्वल टू 45. So I mention all the things which I get from my diagram, and now we are going to solve this. So first of all, always same thing, that always use your right angle triangle. So I have here two right angle triangle, either three right angle triangle, but two triangles are same, this triangle and this are same, so I am using here bottom triangle, okay. So first in triangle that is EDC, तो जो मैं पहले ट्रायंगल अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज EDC है। तो इन EDC ट्रायंगल यू कैन राइट दैट tan थीटा, थीटा कितना है मेरे पास 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ED अपॉन बेस इज DC। tan 45 1, द वैल्यू ऑफ ED इज 7 एंड वैल्यू ऑफ DC इज x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 7 मीटर। सो इस तरीके से आपका जो वैल्यू ऑफ x है दैट बिकम 7 मीटर, ओके। एंड आफ्टर दिस वन आपने दूसरा ट्रायंगल लेना है दैट इज ट्रायंगल ABE। सो अब हम ABE ट्रायंगल अप्लाई कर रहे हैं ऑन दिस ABE ट्रायंगल। अगेन आई कैन राइट tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन दिस BE। So the value of tan 60 is √3, value of AB is h, BE मेरे पास कितना है x, so now to cross multiply x √3 is equal to h,
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। नाउ यू कैन सी दैट वी विल ऑलवेज, जैसा हमेशा करते हैं हम, कि आप एक वैल्यू जो आप निकालते हैं उसको आप सेकंड में पुट करते हैं। सो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, देन x is your 7, so 7√3 is equal to h, ठीक है। तो ये h आपके पास 7√3, ये भी हाइट नहीं आई है, नो नो नो, डोंट थिंक दैट दिस इज आवर आंसर, नॉट, दिस इज नॉट आंसर, बिकॉज आई गेट द वैल्यू ऑफ h ऑफ दिस पोर्शन ओनली, ठीक है। ए भी निकला भी हमारे पास जो हाइट ऑफ टावर है दैट इज ए सी है, पूरी आपके पास हाइट ऑफ टावर है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर दैट हाइट ऑफ टावर दैट विल बी, दोनों को आप ऐड कर देंगे, यानी कि 7√3 plus 7. So now you can see I can take 7 as common, तो आप इसमें 7 कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा √3 plus 1. So this is the required height of the tower for this question. Okay students, now the next question number 13. So in question number 13, so in question number 13 you have the question is what, as observed from the top of 7-meter high lighthouse. तो लाइट हाउस भी आपको पता है that is in the sea for protecting the ships to strike with the mountains or with the icebergs, ठीक है। तो ये ओल्ड वर्ल्ड में हुआ करता था, आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन दिस वन, तो लाइट हाउस जो है ये तो आपको पता है कि दैट इज ऑलवेज स्टैंडिंग एट राइट एंगल, सो आई एम टेकिंग हियर दैट दिस इज योर लाइट हाउस, ठीक है। तो ये लाइट हाउस आई टेक हियर 75 मीटर हाई, तो इसकी जो हाइट है दैट इज 75 मीटर। So height of the lighthouse is 75 from the sea level. तो sea में हम कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं, उस sea में से हमारे पास जो पॉइंट है उस पॉइंट में से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हमने टॉप पे खड़े होके बोलना है। उसने क्वेश्चन में लिखा भी है फ्रॉम द टॉप, यानी आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से खड़े होके आप नीचे को देख रहे हैं, ठीक है, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। सो फ्रॉम हियर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बिकम एंड दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 and 45, ठीक है, एक यहाँ पे और एक शिप यहाँ पे, तो इसका एंगल की जो डिप्रेशन है वो 30 and 45 है। आई एम ड्राइंग हियर रफ लाइन, दिस इज योर 30 डिग्री, अगर ये 30 है देन दिस विल आल्सो 30, दिस होल इज 45, इट मीन दिस विल आल्सो 45, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 30 एक शिप के साथ है और दूसरी शिप के साथ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तभी उसने बोल दिया कि एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे है। मे बी ऐसा भी तो हो सकता था कि एक शिप दूसरी शिप टावर के दूसरी साइड पे ऑन ईदर साइड ऑफ द टावर, अगर ऐसा है देन आई विल टेक दिस शिप ऑन दैट साइड, ठीक है, इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, बट इट स्पेशली मेंशन द क्वेश्चन दैट बोथ द शिप्स इज जस्ट बिहाइंड टू अदर। सो if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. तो आपने इसमें जो पता करके बताना है ये दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस पता करके बताना। So I'm taking this as x and this also I don't know, so you can take this as y, ठीक है। ये आपका y हो गया, ये is your right angle triangle. So now name it this figure. This is your A point, this is your B point, this is your C point, this is your D point. So if you see carefully this diagram is just similar like that of question number 11 जो मैंने
आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। सो दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट लाइक ऑफ दैट, डायग्राम इज सेम आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। यू हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, वन इज ABC। आप पहले ABC में अपना लगाइए, ठीक है, जो आप लगाते हैं अपने सेम तरीके से सॉल्व कीजिए, एंड देन यू विल अप्लाई ट्रायंगल ABD। जब आपने ABD फाइंड करना है तो आपका डिस्टेंस, ध्यान रखना, डिस्टेंस विल बी y प्लस x हो जाएगा, ठीक है, y प्लस x हो जाएगा, एंड देन ऑन दैट केस अगेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y एज वेल एज x। तो दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, एंड देन उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो आप देख लेंगे ये दोनों शिप्स हैं आपके पास C एंड D, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या माना हुआ है x। तो व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे आ जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप्स फ्रॉम द लाइट हाउस, तो इन दैट केस आपका y आंसर होगा और दूसरा आंसर क्या होगा x प्लस y, बिकॉज ये पूरा डिस्टेंस कंसीडर करोगे ना फिर आप, अगर वो ऐसे पूछता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप्स फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप यू कैन सॉल्व दिस सम, दिस द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टेल मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर आल्सो एंड हैव अ ब्यूटीफुल लर्निंग। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्थी।